बहुत सारे लोगों के मन में टैरिफ को लेके बहुत सारे सवाल थे, बहुत ज्यादा सवाल थे, लंबे चौड़े डिस्कशन थे, बार बार उस पर बात हो रही थी। हम सुना देते हैं कि क्या कहा गया है टैरिफ को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। To us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs. I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. I was going to do that in my other term, and we had the greatest economy ever in the world. There's never been an economy like we had, and then we got hit with COVID. We had to focus on that, and I wasn't really in the mood to be putting it on Italy and Spain and France and India, frankly, and a lot of other countries, because the world was very troubled until we got rid of that nightmare. But we had the strongest economy anywhere in the world during that fairly long period of time during my first term, as you know, and we didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president in the first term and now. तो डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब आपने देखा। रोहित, क्योंकि हम बहुत देर से इसी पर चर्चा कर रहे हैं और लगातार दो तीन चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में हम पहले कहा, 1 और 1 11, दो नहीं, साथ ही साथ दोनों ही देशों, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा देश सर्वोपरि है, तो भारत की तरफ से भी कहा गया कि मेरा देश भी हमारे लिए सर्वोपरि है। बहुत सारे जो बहुत ही वाक चातुर्य के साथ जो जवाब दिए गए ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी। इसमें 2-3 चीजें जो समझ में आई, आतंकवाद को लेकर जिस तरह से खुलकर कहा गया, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर जो अश्योरेंस दी गई है, उसके लिए थैंक यू भी कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। कुल मिलाकर कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत महत्वपूर्ण रहे। जी बिल्कुल, तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन बहुत समय से अटका हुआ था, और उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप का देखिए तीसरा हफ्ता है, वो आए, उन्होंने सुनी ये बात और कहा कि ठीक है, ये टेररिस्ट है, इसे एक्सट्राडिट करना होगा, और उन्होंने कहा कि ही वाज अ वेरी बैड मैन एंड ही डिजर्व्स टू फेस जस्टिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात देखिए, ट्रेड के लिए सूत्रों से हमें पता चला है कि दोनों साइड मिलेंगे और दे विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू ट्रेड डील, और एक कोई ट्रेड डील बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने से पहले एक ट्रेड डील होगी जिसमें दोनों अपने पॉइंट्स रख के एक ट्रेड डील करेंगे। तो टैरिफ को कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे कि एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, फिर आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आते हैं, तो वो हमें देखने को मिला। और बाकी चीजों में अगर आप देखें, जैसा कि आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो अमेरिका में हैं, जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, हम देखेंगे अगर ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जो भारत के खिलाफ है, तो वी विल रिव्यू दोस, वी विल सी दैट। तो कहीं ना कहीं ऑल इन ऑल इट्स वाज वेरी सक्सेसफुल विजिट। डिफेंस को लेके हमने कहा गया कि विल बी गेटिंग न्यू फ्रेमवर्क, एक नया फ्रेमवर्क हम बनाएंगे जो एक्सपायर हो रहा था, तो फॉर द नेक्स्ट 10 years, तो उसमें इंडिया ज्यादा आई थिंक सामान खरीदेगा यूनाइटेड स्टेट्स से, और नेचुरल एनर्जी को लेके एनर्जी भी परचेज करेगा, विच कुड बी ऑयल, गैस और कोल। तो अगर आप देखें तो दोनों लीडर्स ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। एक चाहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक चाहता है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और दोनों समझते हैं ये बात को, और कह रहे हैं कि हम विल मेक एवरीबडी ग्रेट, हम प्रोस्पेरिटी के लिए
काम करेंगे दुनिया की प्रोस्पेरिटी के लिए। और ये बहुत कम नेता हैं ऐसे जो कह सकते हैं शशि। हमने नेतन्याहू साहब को यहाँ पे देखा था, जापानीज प्राइम मिनिस्टर को देखा था, किंग ऑफ जॉर्डन को देखा था, लेकिन ये विजिट कंप्लीटली अलग है और वो दिख रहा था जब दोनों लीडर मैं आपस में बात ये कर सवाल रहे भी थे। एक बार फिर से पूछूंगी आपसे रोहित, क्योंकि ये विजिट जैसे हमने देखा ना कि हमने बेंजामिन नेतन्याहू को देखा, उसके बाद हमने फुमियो किशिदा को भी देखा, कुछ और भी वहां पे लोगों की वहां पे मुलाकातें हुई हैं, लेकिन भारत की जो जिस तरह की मुलाकात हुई है, जिस तरह की इंपॉर्टेंस मिली है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहा है। जी बिल्कुल। और सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प जब बैठे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ तो उन्होंने कहा आई मिस्ड यू। 4 साल क्योंकि बाहर थे ट्रम्प व्हाइट हाउस से, तो ये दिखाता है कि ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग। बहुत सारे ऐसे विश्व के नेता हैं जो ट्रेडिशनल एलाइज माने जाते हैं अमेरिका के, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, उनको पहले न्योते आते हैं। इटली, फ्रांस, जो कहा जाता है कि बहुत ही सिंपल से हैं, उनको बुला लीजिए, आपके ट्रेडिशनल एलाइज है, लेकिन उनको सबको रोक कर इनवाइटिंग इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिया। वो अपनी पोजीशन से हटे नहीं, लेकिन जरूर उन्होंने ये दिखाया कि ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ बुला के व्हाइट हाउस में। और अब आप देखेंगे कि आने वाले जो समय में है ये रिलेशनशिप और सक्सेसफुल होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा। बिल्कुल रोहित, बने रहे आप हमारे साथ।